دونوں ساتھ شروع ہونے تھے، ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں. وہ لاہور والا تو شروع ہو گیا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، وہاں پہ آکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ کراچی کے بلڈرز وہاں جا کے زمینیں خرید کے وہاں پہ بلڈنگ بنانے کی چیزیں کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے انویسٹرز، ہمارے اپنے شہر کی وہ نوکریاں، ہمارے اپنے شہر کی وہ انکم، وہ ہمارے شہر میں نہیں آ رہی ہے، وہ جا رہی ہے ہمارے شہر سے. اس کا دکھ ہوتا ہے ہمیں. دکھ تو ہمیں کئی چیزوں کا، ہمیں ہیلتھ کارڈ کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ سندھ میں ہمارے ہیلتھ کارڈ نہیں ہے. بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں چاہوں گا خسرو بختیار صاحب اپنی بات کر لیں، اس کے بعد آپ کے چند سوالوں کے جواب لے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کراچی آ کے، اور پاکستان کی اگر معیشت کو ہم نے ایک سسٹینیبل دیرپا طریقے سے 6% یا 6.5-7% پہ گرو کرنا ہے تو کراچی نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. ورنہ یہ ہم جیسے ہی 5-6% پہ جاتے ہیں ہماری معیشت اوور ہیٹ ہو جاتی ہے، اور ڈالرز کی ضرورت کتنی ہے اور ہمارے پاس ہیں کتنے، اس کا گیپ بڑھ جاتا ہے، روپے پہ پریشر آ جاتا ہے، اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا پڑ جاتا ہے. 2% کی آبادی سے آپ بڑھ رہے ہیں تو جب تک معیشت 6% سے نہیں بڑھے گی، پاکستان ان ڈیولپڈ اکانومیز کے سطح پر نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ 17 دفعہ ہمیں IMF پہ جانا پڑا. کراچی ابھی ایک سروے ہوا ہے، 50% پاکستان کی ایکسپورٹس کراچی سے ہیں، مگر 13.8 یا 14 بلین. میرے نزدیک کراچی پہ اگر توجہ دی جائے اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو اگر کسی سمت میں خرچ کرنا ہے تو وہ کراچی کے ایکسپورٹ پوٹینشل کو بڑھانے میں خرچ کرنا چاہیے، جس سے پورے پاکستان کے اندر اس کا امپیکٹ آئے گا. کراچی میرے نزدیک خود پاکستان کا جو اس وقت اگر 14 بلین کر رہا ہے، اگر پالیسیز اور اس کا حکومت مسلسل حکومتوں کا مرکز رہے تو 5-10 سال میں کراچی خود 30 بلین تک پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے کیوں کراچی؟ کیونکہ یہ پورٹ سٹی ہے، یہاں ایک مرکنٹائل سپرٹ ہے، یہاں ایک کاروباری شعور ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے کل میں سٹیل مل گیا. پاکستان کی اس وقت سٹیل کی ریکوائرمنٹ تقریباً 10 ملین میٹرک ٹن ہے، اور ہر جیسے کنسٹرکشن سیکٹر بڑھ رہا ہے، ہماری سٹیل کی ڈیمانڈ اگلے 2024-25 میں 20 ملین ٹن پہ چلی جائے گی. تو ایک تو سٹیل کو ہم پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو سٹیل مل جو اور سے بناتی تھی وہ پروڈکشن دوبارہ شروع ہو، اور ساتھ ہم جوائنٹ وینچرز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پورٹ سٹی جیٹی یہیں اویلیبل ہے، جگہ یہی مناسب ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم سٹیل مل اور لگائے جائیں یہاں، اور جو گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر کے جوائنٹ وینچر سے ہو. یہاں ہزاروں نوکریاں نکلیں گی سٹیل سیکٹر کے اندر، کیونکہ جیسے ہی آٹو سیکٹر بڑھتا ہے اس کے بعد سزوکی پلانٹ پہ میں گیا، ہم نے میری گاڑی اسکیم دی ہے تاکہ پہلی دفعہ گاڑی خریدنے والے کو یہ آلٹو اور چھوٹی گاڑی مل سکے. اس کی قیمتیں سستی کی، ٹیکس سستے کیے، اس سے کیا ہوا؟ پروڈکشن ڈیمانڈ اور بڑھ گئی، پروڈکشن بڑھ گئی. کل سزوکی پلانٹ پر جولائی کے اندر 100% انکریز ہے ان کی پروڈکشن میں، سزوکی کی گاڑیوں میں. لیکن جیسے پروڈکشن بڑھتی ہے، جو آٹو پارٹس یہاں بنتے ہیں اس کے لیے سٹیل چاہیے ہوتا ہے، تو سٹیل کی پھر ریکوائرمنٹ آپ کی آ جاتی ہے. کنسٹرکشن سیکٹر بڑھتا ہے پھر سٹیل کی آ جاتی ہے. مگر یہ حکومت کا محور ہے کہ پاکستان میں صنعتی ترقی نے کرنا ہے. 2019 میں ہم موبائل پالیسی لے کے آئے، ابھی میں ٹیکنو موبائل سے ہو کے آ رہا ہوں. آپ خوش ہوں گے سن کے کہ پاکستان میں اس وقت جو موبائل اسمبل ہو رہے ہیں اور پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں. نوکیا کا اگریمنٹ ہو گیا ہے، سیمسنگ کا اگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اب پاکستان سے ان جو موبائل ہیں ان کے مختلف پارٹس کو اب لوکلائز کریں گے، اور یہیں سے اب یہ ایکسپورٹ گلوبل ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہوں گے. اسی طرح آٹو پالیسی کے اندر بھی آٹو پارٹس کا ایکسپورٹ مارکیٹ میں جانا ہے. اس کے لیے اب کراچی کو کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو زمین کا چیلنج ہے.
तो स्टील मिल की 1500 एकड़ ज़मीन हमने एक नए इंडस्ट्रियल पार्क का एक प्रोजेक्ट दिया है, जिना इंडस्ट्रियल पार्क का 7 अरब रुपए से, जो इस बजट का हिस्सा है। ये बातें नहीं हैं। इसी तरह 5 अरब रुपए बिजली और गैस की मुहैया करने के लिए धाबाजी इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि सूबाई हुकूमत का जिम्मा था, लेकिन क्योंकि ये कौमी ज़रूरत है तो वफाकी हुकूमत ने 5 अरब वहाँ दिए। और साथ ही 1.2 अरब से अब ग्रिड इंशाल्लाह बन रहा है बिन कासिम इंडस्ट्रियल स्टेट पे। तो जो ज़मीन इस वक्त सरकार के पास है, उसको हम बेहतर इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं। और जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि इनको भी हम कर्जों की शक्ल में इसकी लीज मॉडल की शक्ल में इन ज़मीनों को देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को। आखिरी चीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो बिजली, कल मैं केई पे गया, केई मुझे खुशी हुई कि उनका 900 मेगावाट को जो प्लान है, उसमें 400 मेगावाट का पावर जनरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल टाइम से चल रहा है और नवंबर तक उम्मीद है वो इन प्रोडक्शन आ जाएगा। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने फिर कदम आगे बढ़ाया और इनके साथ गैस सप्लाई एग्रीमेंट अगस्त में कंक्लूड किया, और जो कराची की ज़रूरत है एक्स्ट्रा बिजली की, वो भी नेशनल ग्रिड से हम मुहैया कर रहे हैं। तो आखिर में मैं पुरुमीद हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमतें और पॉलिसी साथ कराची का जो मकाम है इस मुल्क की माशी ग्रोथ में, उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को अगर मजबूत रखेंगे तो पाकिस्तान की एक पायदार माशी ग्रोथ मुमकिन हो सकेगी। वरना कई अदवार से वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान को नहीं मिल सकी। और ये बढ़ता हुआ आबादी का जो हुजम है, जो हमारा ये नौजवान आबादी का जो रेशो है, इसको हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। तो आप यकीन रखिए, पीटीआई की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन, और पीटीआई दर हकीकत एक कौमी जमात है जो कराची से खैबर तक उसकी नुमाइंदगी है, जो लोग चाहे। और ये वो जमात है जिसने उन इलाकों को अपनी पॉलिसी साजी पर का मरकज़ बनाया है जो पिछली अदवार में नहीं था। जनूबी पंजाब की तरफ तवज्जो नहीं थी, कराची की तरफ तवज्जो नहीं थी। केपीके को आप जाके देखें, अब अल्लाह का करम है वहाँ जो तब्दीली आ रही है। इसी तरह सदर्न बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान को इकट्ठे ऊपर लेके जाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका मशकूर हूँ। शुक्रिया। स्टील मिल जब 2015-16 में चल रही थी तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का 6% चला रही थी। मैं इसलिए खुद गया वहाँ, मुझे भी आए हुए 3-3.5 माह हुए। मैं अपनी देखना चाह रहा था कि प्लांट मशीनरी की कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो ये पूरा एक ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज हुई है। स्टील मिल की जो वाजिबात हमने अदा करनी थी और अभी भी अदा कर रहे हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें, उसके लिए मैं समरी करके आया हूँ, ताकि एक जो वो हुकूमत का जिम्मा है, जो गवर्नमेंट स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ हैं, वह हाउसिंग कॉलोनीज बनी हुई हैं। और जो मैंने अर्ज़ किया आपको कि पाकिस्तान की स्टील की जो डिमांड है
वो आज अगले 5-6 साल में 20 मिलियन मेट्रिक टन पे चली जाएगी। उसके लिए एक स्टील मिल नहीं और स्टील मिल्स की जरूरत है। तो हम तो और स्टील मिल्स पब्लिक प्राइवेट वेंचर के तहत लगाना चाहते हैं वहां, और इस स्टील मिल को फिल फॉर फायल कराना चाहते हैं। और उसके लिए ये जो इससे नहीं जानते इन नंबर्स को, वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि 50 बिलियन में ठीक हो जाती, 150 बिलियन कर लिए। इससे इसका कोई दर हकीकत ताल्लुक नहीं है। देखिए, गाड़ियों पे हमने बहुत, जो हमारी ऑटो पॉलिसी है उसका फोकस किन चीज़ों पे है। एक ये है कि जो ऑन की लानत है इसको ख़त्म किया जाए। तो जिसने गाड़ी खरीदनी है, जिसने गाड़ी रजिस्टर करनी है, वही गाड़ी खरीदे, इन्वेस्टर ना आए। और अगर इन्होंने अपनी डिले किया तो 3% प्लस काइबोर पर ये अमाउंट देंगे उसको। दूसरा यह कि 20% सिर्फ आप दें, पहली दफ़ा गाड़ी खरीदनी है, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे जाना है, छोटी गाड़ी पे, तो आप 20% अमाउंट जमा कराएंगे गाड़ी की टोटल रकम की, और बाकी किस्तों में अगर आपने देनी है तो वो किस्तों में आ जाएगी। तीसरा, क्योंकि सुजुकी पे क्या हमने मेरी गाड़ी स्कीम को कुछ लाख सवा लाख कम की कीमतें टैक्स खत्म करके, तो उसकी अब डिमांड बढ़ी है। तो मैंने प्रोडक्शन कहा कि आप प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे ताकि ये गैप ना आ सके। और प्रोडक्शन के बढ़ते ही हम इंशाल्लाह कार लीज फाइनेंस की भी छोटी गाड़ी के लिए कम इंटरेस्ट रेट पे इंशाल्लाह स्पेशल स्कीम लेके आ रहे हैं। दूसरा, इनकी क्वालिटी वर्ल्ड WP स्टैंडर्ड्स 29 के मुताबिक हम इंश्योर करेंगे। और प्राइस पे भी हमने इस नई पॉलिसी के अंदर डाल रहे हैं कि ये प्राइस को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा इनको। ये मुंह मांगे कीमत नहीं खुद डिसाइड कर सकते। और लास्टली, ये बड़े 1980 से हो रहा है। अब चैलेंज क्या है कि लोकलाइजेशन की जाए। हमारा चैलेंज इंपोर्ट बिल का है। तो ऑटो पॉलिसी के तहत हमारी कोशिश यही है कि हम इनको मैंडेटरी कर रहे हैं कि अब आप जो पुर्जे हैं अब इंपोर्ट करना बंद करें और यहां बनाएं। तो ये SRO 693 है, वो जरा टेक्निकल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वैल्यू टर्म्स में भी इनकी गाड़ियों को हम लोकलाइज कर रहे हैं। देखिए जो कुछ पुरानी कंपनीज हैं, कुछ नई हैं। जो नई आई हैं उनके पास 5 साल का टाइम है पिछली पॉलिसी के तहत, मगर हमारा सारा फोकस ही लोकलाइजेशन की तरफ है, असेंबली की तरफ है नहीं। गवर्नर साहब, आपसे एक सवाल है। इसके बाद ले लीजिएगा। उनसे कहें सिंध हुकूमत तो चला के दिखा दें, फिर बाकी बात करेंगे बाद में। 10 साल से तो सिंध हुकूमत ही नहीं चल रही उनसे। गवर्नर साहब, आपसे एक सवाल है। इधर सर, आपने ये बुंडल आइलैंड की बात की, इस पे मेरा सवाल ये है कि सिंध के लोग जो हैं वो हर मकतबा फ़िक्र के लोग एहतजाज कर चुके हैं, इन पे सिंध हुकूमत भी एतराज़ कर चुकी है। तो आपके पास सिंध के लोगों को एहतजाज और सिंध हुकूमत के एतराज़ की अहमियत क्यों नहीं है? देखिए, जो हमारे सिंध के दोस्त एहतजाज कर रहे थे उन तक सही बात पहुंची ही नहीं। उनको ये बताया ही नहीं गया कि ये सारा फायदा इसका सिंध के लिए है। इससे कोई लाहौर को तो फायदा नहीं होना, इससे कोई KP को तो फायदा नहीं होना। ये बात जब हमने अपने अंसारों से हम बात कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त एहतजाज कर रहे थे, और वो समझ रहे हैं इस चीज को अब। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये इसको सिंध हुकूमत भी मानेगी कि उन्हें ये पता लगे। अब उनको भी समझ आई है इस चीज की कि ये
इनसे गलती हुई है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट वफाक जो दे रहा था सूबे सिंध को, इसमें सरन सिंध का फ़ायदा है और सिंध के लोगों का फ़ायदा है। मुझे कोई एक नुकसान बता दें कि इसका क्या नुकसान है। कोई एक इसमें से रेत का ट्रक निकाल के लाहौर ले जा रहे हैं, कोई क्या करेंगे इसके अंदर? कुछ भी नहीं हो रहा। सिंध का आइलैंड है, बहुत खूबसूरत है, दुनिया की अट्रैक्शन इसको मिल सकती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। लिहाजा इससे सिर्फ हमारे सूबा सिंध का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी का होना है तो हमारे सूबा सिंध का और उसके लोगों का फ़ायदा होना है। मैं एक बात करना चाहूँ, इस हुकूमत ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए किया है, वो ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क जो बने हैं, इनको जो बिजली और गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है, वो वफाकी हुकूमत ने 22 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है, और उस 22 अरब में से 13.2 अरब रुपए कराची के इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए है। और ये बात वो नहीं है कि हम करेंगे, ये हो चुका है, ये बजट का हिस्सा है, ये पीएसडीपी का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते तशरीफ ला रहे हैं केसीआर का इफ्तिताह करने। मैं भी वजीर मनसूबा बंदी रहा शुरू के 1.5 साल, सवा साल। तो जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू में आया, गवर्नर साहब की शब व रोज़ तंबीह भी थी, कोशिश भी थी, काविश भी थी, जिसकी वजह से अब ग्रीन लाइन कुछ शक्ल पकड़ रही है। एज मनसूबा बंदी मिनिस्टर और EAD K4, मैं खुद चीफ मिनिस्टर के साथ तंजीर लेक पे गया और हमने अप्रूव किया वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग के तहत एक मास्टर प्लान 1.6 अरब डॉलर का सिंध गवर्नमेंट के लिए, जो वफाक ने गारंटी दी इस लोन की वापसी की, जिसके तहत कराची का सेवरेज और टाइफाइड का सारा ताल्लुक ही तकरीबन इसकी वाटर सप्लाई और सेवरेज का मसला है। और इसके लिए जितना और पैसा चाहिए सिंध हुकूमत को, उसकी भी गारंटी देने को वफाकी हुकूमत तैयार है। वफाकी हुकूमत ने कराची KE ने गैस मांगी पुराने प्लांट्स के लिए, उसका एग्रीमेंट किया। KE ने और बिजली मांगी कराची ने, उसको दिया। कराची की, जैसे मैंने अर्ज किया, धाबा जी एक वाहिद मिसाल है। ये इंडस्ट्रियल जोन इन्होंने बनाना है, स्टील मिल की तो क्या, जो इन्होंने बनाना है वो ही नहीं बना रहे। वहां भी 5 अरब वफाकी हुकूमत दे रही है। बदकिस्मती से ये हकीकत है कि कौमी और सूबाई हुकूमतें अगर दो मुख्तलिफ पेजेस पे हों और एक पेज वो हो जो 10 साल से ही ना बदला हो और रफ्तार तेज करनी ना हो, और मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से, तो पीपल्स पार्टी को तो मैं बड़े 30-40 किलोमीटर से देखता हूं जब उबाड़ो शुरू होता है गुट की, तो वो एक अलग दास्तान है इनकी। बदकिस्मती से अगली दफ़ा इंशाअल्लाह PTI सिंध में भी हुकूमत बनाएगी, और आपकी जो ये कुछ लेट कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह है सूबाई हुकूमत की, इंशाअल्लाह ये निकलेगा। कराची को वो मकाम मिलना इस मुल्क की ज़रूरत है।
یہ پی ٹی آئی سے بڑھ کر ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے. کلر سے لے لیں. جی، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا اسٹیل، میں تو یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اسٹیل مل پرائیویٹائز ہو، 2 نئی اسٹیل ملز لگیں، جو 4-8 ہزار 14 ہزار ملازمین ہیں، یہ 20-25 ہزار ملازمتوں کی ضرورت ہوگی. تو انشاءاللہ یہ کھپ جائیں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس. آپ کنسٹرکشن سیکٹر جب اوپر جائے گا تو اسٹیل کی ضرورت ہے، آٹو سیکٹر بڑھے گا اسٹیل کی ضرورت ہے. مین انگریڈینٹ را مٹیریل ہے. اور سب سے بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے اور مائننگ نہیں کی. تو مائننگ پالیسی بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اپریل کے اندر، چکوال کے اندر مجھے امید ہے کہ ہمارے پاس اور ہے، ورنہ اور بھی امپورٹ کرتے ہیں ہم. دوسرا آپ کا سوال میں نے نہیں دیکھا یہ الیکشن کمیشن پہ کیا انہوں نے کہا. تو آنیسٹلی میں تو صبح سے ٹیکنو موبائل اور کبھی پاکستان بزنس کاؤنسل، ابھی سندھ انڈسٹریل لیزون کمیٹی، انہیں میں مصروف ہوں. تھینک یو سر. بس یہ لاسٹ کوشچن ہے، اس کے بعد ہم جانے جی. اور لاسٹ کوشچن اس کے ساتھ ہی لے لیں گے. آپ بھی کر لیں، ساتھ ہی سوال لے لیں گے. دیکھیے کے سی آر کا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کا ٹرم پورا ہو رہا ہے 28 میں، 2028 میں. تو کے سی آر انشاءاللہ چل جائے گی، اس کی آپ فکر نہ کریں. اور باقی لوازمات بھی ہم کر لیں گے. جو خسرو بختیار نے کہا ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، تو باقی چیزوں کو بھی ہم سنبھال لیں گے. خسرو صاحب آپ اسٹیل کا جواب دے دیں. تھینک یو. آپ کا بسیمز آپ فالو کرتے رہے ہیں سارے پروسیس کو. تو ان کی کافی حد تک سیٹلمنٹس ہو گئی ہیں ایس جی سی کی، اس لیے ہی پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے لیے انویسٹرز کو لیٹر ایشو کر دیا ہے اسٹیل مل کا. تھینک یو.